Very good morning, students. This is Nitin Jain, your commerce teacher. This time, as in previous class, we had learned for company's balance sheet liabilities block. So, in this type class, we need to discuss the assets block. And we had already discussed that the company's balance sheet is prepared in the vertical format because in previous condition we had drawn the liabilities block, and now this time we are discussing for assets block. So it is very easy to read assets block because it has only two major categories. The first major category, it is indicated onto the board, is the non-current assets. These are the assets. This is called non-current assets, means the amount that we need to pay after a long duration of time. That's why this is considered as non-current assets. But how you will confirm that in any of the business the particular asset is a long term or short term? So please be very precise and listen very carefully. In absence of any other information, normally we consider the time duration of 12 months. So on behalf of time duration of 12 months, we consider that if we need to get back our money after 1 year, 12 months, so it is maybe considered as non-current assets. And in case the assets to be realized within 1 year, so it is called current assets. The point number 1, point number 2, second point is current assets. But in company's account, there are different parameters to calculate and to consider that which particular assets is a long term or non-current or current. So what are these parameters? Listen, the Company Act 2013 has fixed one parameter, and this parameter is considered as operating cycle. So what is operating cycle? We had never learned about this, so you should know. Operating cycle means the time duration for acquisition of assets. किसी assets को पाने में लगने वाला समय, the time, समय जो लगा, the time duration for acquisition of assets. किसी assets को आपने acquire किया, किसी assets को आपने पाया, उस assets को पाने के बाद में उसको आपने ready किया for the purpose of sale, और उसके बाद उस सेल करके उसका पैसा आपने रिकवर किया, मनी इन हैंड्स, मनी आपके हाथ में वापस से आया. तो जितना समय लग गया उस असेट्स को एक्वायर करने में, प्रोसेस करने में, रेडी टू सेल करने में, सेल कर दिया गया और उसके बाद जो पैसा आया हाथ में, तो इस पूरी की पूरी टाइम लेंथ चेन को बोलेंगे ऑपरेटिंग साइकिल. प्लीज बी वेरी काम इन दिस टॉपिक. Listen again. Company Act says how you will confirm the particular assets is a non-current assets, you may say long term, or the particular assets is a current assets. So they had specified very precisely. They said it will be fixed on behalf of operating cycle duration. So what is operating cycle? So they had suggested टाइम ड्यूरेशन, वो समय, कहां से कहां तक का समय, असेट्स को खरीदने, असेट्स को पाने, असेट्स को एक्वायर करने का समय, और वहां से लेकर के असेट्स को रेडी करने का समय, और उसके बाद उसको प्रोसेस करने का समय, सेल करने का समय, वो सब कुछ क्लब हो जाएगा उसमें, और फाइनली आपके पास पैसे आपके हाथ में आ जाने का समय. तो वो जो टोटल टाइम कंज्यूम होगा एक्विजिशन से सेल होने के बाद पैसे हाथ में आने में, वो टोटल टाइम आपके बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल कहलाएगा. अब अगर मान लीजिए कि किसी बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल ड्यूरेशन सपोज 20 मंथ्स है, 20 महीना या इससे भी ज्यादा है, तो उस बिजनेस में, जैसे एग्जांपल हमने किया 20 मंथ्स, तो उस बिजनेस में ऐसा कोई भी पेमेंट जो असेट्स को बेच करके आपके हाथ में आने वाला है और वो टाइम ड्यूरेशन एज पर एग्जांपल 20 मंथ से ज्यादा समय बाद पैसा आएगा,
क्योंकि 20 मंथ्स का आपका ऑपरेटिंग साइकिल है। तो उस केस में उस ज्यादा लंबे समय बाद जो पैसा लेट आने वाला है उस पैसे को बोलेंगे नॉन करेंट असेट्स, और जो पैसा ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ जाएगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज करेंट असेट्स। लेकिन कंपनी एक्ट में यह भी कहा गया है कि अगर कहीं पर ऑपरेटिंग साइकिल को कैलकुलेट करने का टाइम ड्यूरेशन स्पेसिफाइड नहीं है तो उस केस में आप बिल्कुल परेशान मत हो एंड देन टेक योर डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ 12 मंथ यानी कि 1 ईयर बिहाफ। So they had very clearly specified the details. I am just repeating for your welfare. Please consider what originally they want to say. How you will determine that particular assets is a non-current assets or current assets. So they had suggested first on behalf of operating cycle and second on behalf of, in case of information is not given for operating cycle, then on behalf of 1 year time duration. So on that behalf you would be able to know that what is the actual condition for considering any of the assets as a non-current assets or as a current assets. Now we need to detail for these things. First of all, non-current assets. So non-current assets is internally divided in 2 or 3 parts. This non-current assets is considered as a measure head. So please take care. This is called as measure head. So measure head is a number 1 measure head is a non-current assets and number 2 measure head is current assets. In exams, you need to segregate. You need to find out the detail at which particular assets is a measure head and which particular assets is a non-measure. It means current assets. So in terms of non-current assets, long-term assets, we have internal division. First of all, it is fixed assets. What kind of assets may be considered as fixed assets? So it is further categorized in 4 terms. It's very easy to know, but we have vision. Number 1, tangible assets. ऐसी कोई भी assets जिसको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ऐसा कोई भी सामान इसको कि आप टच कर सकते हैं, ये सारा सामान tangible assets. तो tangible assets की कैटेगरी में ये सारी की सारी चीज़ें tangibility के फैक्टर को डिजर्व करती हैं. तो ये tangible assets हुआ. tangible assets बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, फर्नीचर, tangible. नंबर 2, intangible assets. ये वो assets हैं जो बिजनेस में आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपको हेल्प कर रही हैं. तो intangible assets में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, टेक्निकल नो हाउ. आपने पेमेंट करके किसी दूसरे से टेक्नोलॉजी एक्वायर की है कि हम ये काम कैसे करें. तो टेक्निकल नो हाउ. सो इट इज अगेन कंसीडर्ड एज intangible assets. So we have fixed assets in 2 categories, tangible or intangible. Then the next one, third one, capital work in progress. Several times the students are confused in this behalf that what is capital work in progress. You should learn carefully. Suppose आज आप एक बिजनेस चला रहे हैं और जो बिजनेस आप चला रहे हैं वो शहर के एक कंजेस्टेड से मार्केट में चल रहा है. इन आगरा, जौहरी बाजार, रावतपाड़ा, किनारी बाजार, बेलनगंज, रश मार्केट, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा. आज जो शहर का वीवीआईपी कस्टमर है वो इन मार्केट में जाना ही नहीं चाहता क्योंकि बहुत रश है. कहाँ तो अपनी कार खड़ी करेगा, कहाँ जाएगा, बहुत मुश्किल. तो ये मेंबर्स यहाँ से बाहर निकल के जाते हैं और ये चाहते हैं कि संजय प्लेस, सदर या और दूसरे बड़े मार्केट्स में ये लोगों के ऑफिसेस हों, शॉप्स हों और वहाँ से ये आवश्यकता का सामान खरीद लें. आगरा का नंबर 1 कस्टमर. सो ये जो शॉपकीपर है जिनकी अपनी दुकान लंबे समय से इस पुराने मार्केट्स में चल रही है, तो वो शॉपकीपर भी इस ट्रेंड को समझ रहा है कि आगे आने वाला कस्टमर या तो ऑनलाइन सामान खरीद लेगा, नहीं तो इतनी भीड़भाड़ की मार्केट में नहीं आएगा. तो कोई बात नहीं, उसको समझने आने लगा कि अभी तो मेरी दुकान चल रही है लेकिन अब से 5 साल बाद नहीं चलेगी क्योंकि यहाँ का मार्केट जल्दी फ्लॉप होने वाला है, कस्टमर नहीं आएगा. तो ऐसी कंडीशन में एक बड़े से बिल्डर का एक ऑफर आया. उन्होंने कहा साहब हम जो है संजय प्लेस और एमजी रोड की रोड पर एक बड़ा ग्रैंड शोरूम बनाने जा रहे हैं और उस बड़े वाले शोरूम में बहुत बड़े बड़े सेठ लोग अपनी अपनी दुकानें बुक कर रहे हैं. आप चाहें तो आप भी स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, आपकी कन्वीनियंस के मुताबिक हम आपको स्पेस प्रोवाइड कराएंगे. हमें उनका लोकेशन, उनका बिजनेस प्लान और बिजनेस में दूसरे इन्वेस्टर्स और साथ में मार्केट का लोकेशन, टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छा लगा. हमने कहा इट वुड बी ए गुड प्लेस व्हेन इट विल बी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट.
हमने कहा ठीक है भाई, एक दुकान, एक शोरूम हम भी ले लेंगे, हमारे लिए काम रेडी करो। बिल्डर कह रहा है कि ठीक है साहब, जो प्रोजेक्ट रेडी होगा 60 लाख रुपए का रेडी होगा। तो हमने कहा डन, 60 लाख रुपए हम तुम्हें देंगे। तो बिल्डर कह रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जिस दिन आप प्लॉट बुक कर देंगे उस दिन आपको देने होंगे 5 लाख रुपए। हमने कहा बिल्कुल ठीक। तो कहा जब मैं इसकी दीवारें खड़ी कर लूंगा, दीवारें, तो आपको अगले 10 लाख और देने पड़ेंगे। तो हमने कहा ये भी ठीक, तुम दीवारें खड़ी कर देना तो हम मान लेंगे इतना कंस्ट्रक्शन हो गया, तो हम 10 लाख रुपए पेमेंट कर देंगे। जिस दिन मैं इन दीवारों के ऊपर छत डाल दूंगा उस दिन 10 लाख रुपए और देने पड़ेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाइज काम होता जा रहा है। तो बिल्डर कह रहा है मैं अपने पैसे क्यों लगाऊं, तुम्हारी दुकान बन रही, दुकान बनकर तुम लोगे, पैसे मैं बचाऊं, तो मैं तो बना रहा हूं, पेमेंट आपको देना पड़ेगा। तो बिल्डर ने टाइम टू टाइम आपसे पेमेंट मांगता गया और आप वो पेमेंट करते चले गए, और उस पेमेंट के करते जाने से आपके सामने के सामने, आपकी निगाहों के सामने बिल्डिंग और मार्केट कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। तो आपको लग रहा है कि मैं पैसे दे रहा हूं तो मेरे पैसे वेस्ट नहीं जा रहे हैं, मेरे सामने काम हो रहा है। बिल्डर को लग रहा है पार्टी खरीदने में सामान को इंटरेस्टेड है, पैसा लगा रही है, मैं सामान बना के बढ़िया से बढ़िया दूं। तो इस स्थिति में आपके सामने कोई असेट्स कंस्ट्रक्ट हो रही है। दिस इज कॉल्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, क्या काम पूरा हो गया? नहीं, अभी काम चालू है। लेकिन वो कैपिटल क्यों है, असेट्स क्यों है आपके लिए? क्योंकि वो आज तो नहीं लेकिन कल को वो आपको एक रिटर्न प्रोवाइड करेगी, और आज भी जो पैसा आप इन्वेस्ट कर चुके हैं वो आपके बिजनेस में आपको बेनिफिट देगा। तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी बिजनेस के अंदर में आपका पैसे का बेनिफिट। स्टूडेंट, दिस टाइम इन फिक्स असेट्स ब्लॉक वी हैड लर्न 2 or 3 थिंग्स। नंबर 1, टेंजिबल असेट्स, जिसको छू सकते हैं, इनटेंजिबल असेट्स, जिसको छू नहीं सकते। नंबर 3, कैपिटल वर्क इन progress. It means some part of the assets are constructing and it will take time, so we are continuously paying till the date of construction and as per the agreement, and whenever the construction complete we will get our assets in our hands. So this is called capital WIP, work in progress. The next thing, intangible assets under development. देखा जाए तो ये है कैपिटल WIP एंड नेक्स्ट इज इंटेंजिबल असेट्स, 4th नंबर, इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। अब बात आती है कि ये इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट क्या होता है भाई? हम किसी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को मिले, हमने कहा भाई हमारी दुकान के लिए एक ऐप बना दे और उसमें इतने तरह के फीचर्स और ये चीजें बना दो, और जो चीजें हम इसमें और अमेंड करना चाहें वो भी हम कर सकें, और इन सारी फैसिलिटीज के साथ तुम हमारा वर्क करो। तो हमने बड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड सा ऐप बनवाया है, जिससे हम ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड में हम बिजनेस करेंगे, लाइक उबर और ओला और यूट्यूब। तो हम इस तरीके का कोई ऐप बनवाने के प्लानिंग में हैं। सो इट विल टेक टाइम। ये कोई छोटा मोटा 100, 150, 500 रुपए का ऐप नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ऐप है। आप बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं दूसरे बैंक्स को और कह रहे हैं कि आपके सारे ट्रांजैक्शंस को हमारा सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड करेगा, आप सिर्फ डाटा एंट्री करते जाइए, सिस्टम अपने आप सेग्रीगेट कर देगा। तो ये सॉफ्टवेयर बनने में समय लगता है, कॉस्टली सॉफ्टवेयर होते हैं, और उसके बाद इनके प्रोटेक्शन फीचर्स को बहुत बड़े स्टैंडर्ड्स पर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर फॉलो किया जाता है। आप देख सकते हैं यूट्यूब का डेटा है, व्हाट्सएप का डेटा है, तो ये डेटा यूज होता है। तो ये छोटे मोटे सॉफ्टवेयर्स हैं या ऐप है या बड़े ऐप है? बड़े ऐप है, कॉस्टली ऐप है। तो यहाँ पर आपने अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के लिए कोई ऐप कंस्ट्रक्ट करवाया है। तो जैसे आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई थी, ऐसे ही आपने ऐप। तो बिल्डिंग तो टेंजिबल पार्ट थी, और जो ऐप आपके लिए डेवलप होने वाला है उसका नाम क्या हो जाएगा? इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, क्योंकि ये आपको इंटेंजिबल असेट्स के तौर पर रिएक्ट करने वाला है या आपको बेनिफिट प्रोवाइड कराने वाला है। सो स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैड लर्न नॉन करेंट असेट्स, and in non-current assets we had segregated fixed assets, number 1, and this fixed assets is further divided in 4 internal parts. Number 1, tangible assets, जिसको छू सकते हैं, intangible छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। कैपिटल WIP, बिल्डिंग बन रही है, हम लगातार पेमेंट करते जा रहे हैं, जब बिल्डिंग पूरी बन जाएगी तो पोजेशन हमें मिल जाएगा, हमारी एसेट्स हमारे पास। Intangible assets under development, I just illustrate by app that is utilizing for our business purpose, and we are paying for this continuously. So whatever the level of progress or whatever the level of speed of working, we will pay him or person or the company accordingly. This is intangible assets. Now students, next thing we need to learn
नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, हमने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जिसका कि पैसा अभी हाल फिलहाल में नहीं आना, बल्कि वो पैसा ऑपरेटिंग साइकिल के भी बाद आएगा, लंबे समय के बाद वो मनी हमारे पास आएगी। तो आज हमने पैसे इन्वेस्ट करके पटक दिए, भूल गए, एक तरफ पटक दिए कि आगे कभी बिजनेस में ग्रोथ होगी तो ये पैसे हमें बेनिफिट देंगे। सो दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिससे बिजनेस को बेनिफिट लंबे ड्यूरेशन के बाद होने वाला है। नेक्स्ट इज डेफर्ड टैक्स असेट्स। स्टूडेंट्स जिन्होंने कल क्लास वीडियो अटेंड किया था, लाइव क्लास अटेंड की थी, जिन्होंने वीडियो सर्च किए हैं, वो लोग जानते हैं कि हमने कल इसको बहुत डिटेल डिस्कस किया डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज के नाम से। तो या तो ये डेफर्ड टैक्स असेट्स हो सकता है और या फिर ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हो सकता है, दो में से कोई एक काम होगा। तो ये होता क्या है, कंपनी एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट और भारत सरकार अलग अलग एक्ट्स के थ्रू जो बड़े वॉल्यूम में टैक्स पेमेंट करने वाले मेंबर्स होते हैं, बिजनेस हाउसेस होते हैं, उनको ये बाउंड करती है गवर्नमेंट कि आप अपने करेंट ईयर का टैक्स हमें अभी करेंट ईयर में हैंड टू हैंड पे करिए, हमारे पेमेंट को डिले मत करिए, हमारे पेमेंट को अपने पास बैड डेट्स मत करिए, हमारे पैसे को अपने पास रख के मत बैठे रहिए। तो गवर्नमेंट के बहुत सारे टेक्निकल प्रोविजंस हैं और इन पर भारी अमाउंट की पेनल्टी लगती है अगर आपकी तरफ से पेमेंट में डिले होता है या पेमेंट आपका टाइम से नहीं होता है। तो गवर्नमेंट, बिजनेसमैन बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरा पेमेंट डिले हो, मेरा पेमेंट बिना मतलब में मारा जाए। तो इसके लिए एक सिंपल तरीका होता है कि बिजनेसमैन सोचता है कि मेरे पैसे एडवांस में चले जाएं, 1 लाख 2 लाख रुपए, कोई बात नहीं, लेकिन पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। पेनल्टी लग गई 25 लाख रुपए की और अमाउंट जा रहा है 2 लाख रुपए का, 2 लाख जमा कर दे भाई, अगर एक्स्ट्रा पहुंच जाएंगे तो वापस लौट करके आ जाएंगे। तब बिजनेसमैन ने अपना हिसाब लगाया, एक रफ सेंस, लास्ट ईयर मेरे दुकान की बिक्री 200 करोड़, टैक्स बना था 25 करोड़, इस साल एक्सपेक्टेड टू सेल मेरे दुकान की बिक्री 250 करोड़, पिछली बार टैक्स बना था 25 करोड़, तो इस बार का टैक्स बन जाएगा लगभग 30-32 करोड़ के आसपास। तो ठीक है, 32 करोड़ का अमाउंट अप्रॉक्स टैक्स का आता है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं टैक्स में हर महीने 3 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को देता जाऊंगा। ऐसे मैंने एक रफ फिगर अपने मन में, अपने दिमाग में प्लान कर ली कि मैं टैक्स के नाम पर हर महीने 3 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को दूंगा। तो 3 करोड़ रुपए अगर मैं 12 बार गवर्नमेंट को दे दूंगा तो मेरी तरफ से कितनी पैसे पहुंच जाएंगे हर महीने के हिसाब से, 3 करोड़ के हिसाब से 36 लाख का पेमेंट गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें अब यह पक्का करना पड़ेगा कि मेरी दुकान पे 250 करोड़ रुपए की बिक्री, वो तो मेरा टारगेट था, एक्स आंट था। क्या एक्स पोस्ट एक्चुअल भी 250 करोड़ हो पाया? तो मालूम पड़ी था एक्स पोस्ट तो 260 करोड़ पहुंच गया। तो चलो बढ़िया हो गया भाई, और सेल से भी ज़्यादा टारगेट स्कोर कर पाए। वैसे बढ़िया तो नहीं, वो टारगेट के बराबर होना चाहिए था, और अगर कम रह गया तो थोड़ा दिक्कत का टॉपिक भी है, चलो वो भी कोई बात नहीं। तो खैर हमारी बिक्री जो हुई वो सपोज 250 करोड़ हो गई। तो 250 करोड़ रुपए पर आज के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक जो गवर्नमेंट ने प्रोविजंस ऐड या लेस कर दिए, इनके ऊपर से फाइनल पेमेंट कितने रुपए का बनता है कैलकुलेट करके बताया चार्टेड अकाउंटेंट ने कि सर आपकी फर्म की बिक्री करंट ईयर में 250 करोड़, तो इसके ऊपर जो टैक्स का अमाउंट बनता है आपके ऊपर में, ये टैक्स की लायबिलिटी बनती है 31 करोड़, और आप जो टैक्स 3 करोड़ रुपए महीने के रेट से पेमेंट करते चले जा रहे हैं, इससे आपने गवर्नमेंट को जमा करा दिया पहले से ही 36 करोड़। तो 5 करोड़ आपकी तरफ से एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो गया। हमने कहा एक्स्ट्रा तो ठीक है, ये बता पेनल्टी तो नहीं लगेगी? कि साहब पेनल्टी छोड़ो, आपके पैसे उल्टे लौट करके आएंगे। तो हमने कहा वापस करवा भाई पैसे हमारे, काहे के लिए सीए बना के रखा हमने तेरे को अपनी कंपनी में? वो कह रहा है ठीक है साहब, आपका केस फाइनल करके मैं पैसे रिफंड मंगाता हूँ। तो वो अपना रिटर्न फाइल करेगा सीए, और उस रिटर्न फाइल के अगेंस्ट जितना एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो गया है उसके रिफंड की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट को डाल देगा। अकॉर्डिंग टू रूल्स विद इन 14 डेज आपके पास आपके पैसे वापस आ जाएंगे 5 करोड़ रुपए, और अगर गवर्नमेंट 14 डेज में आपका मनी वापस करने में फेल होती है तो उस केस में गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये आपकी असेट्स वाली बात हो गई कि नहीं हो गई, कि आपका पैसा वहां से लौट करके आ जाएगा, डेफर्ड टैक्स असेट्स। वन मोर, मान लीजिए कि आपको एक्सपेक्टेड था कि इस साल 3 करोड़ रुपए महीने के हिसाब से 36 करोड़ रुपए मैं टैक्स के पेमेंट कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। लेकिन
बिक्री सेल्स 250 करोड़ की जगह ओरिजिनली टक्कर कर गई 300 करोड़। तो मालूम पड़ा कि टैक्स की लायबिलिटी हम पर जो जनरेट हो रही है वो हो रही है सपोज 38 करोड़। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास से 36 करोड़ तो पहले से ही डिपॉजिट है, तो 2 करोड़ रुपए की शॉर्टेज है। तो गवर्नमेंट 10% का वेरिएशन एक्सेप्ट करती है। अगर आपके टैक्स अमाउंट में जो डिपॉजिट हो गया और जो अंतर रहेगा 10% का वेरिएशन, तो गवर्नमेंट पेनल्टी नहीं लगाएगी। तो हमारा तो 36 करोड़ डिपॉजिट है, बनता कितना है 2 करोड़ का, तो बाकी के 38 करोड़ का, तो बाकी का जो 2 करोड़ बचता है उसको मना थोड़ी कर रहे हैं, उसको भी पेमेंट करने के लिए रेडी है। बट दैट इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जो हमने कल पढ़ा था, बिकॉज वी नीड टू पे, बट दिस टाइम दिस इज डेफर्ड टैक्स असेट्स। कंपनी की किसी एक बैलेंस शीट में या तो डेफर्ड टैक्स असेट्स हो सकता है या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो सकता है। दोनों बातें एक साथ एक ईयर में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, एक ईयर में दोनों बातें एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो या तो हुआ डेफर्ड टैक्स असेट्स, क्योंकि गवर्नमेंट विल पे बैक अस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी बिजनेस ने बहुत सारे अलग अलग पर्पजेस की वजह से दूसरे लोगों को कुछ पैसे देकर रखे हैं, और जो पैसे हमने दूसरे लोगों को देकर रखे हैं उन पैसों की वजह से हमारे पास मनी वापस आ जाने का है। तो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। हमने दूसरे लोगों को लोन बांट दिया है, पैसा लौट करके हमारे पास वापस आएगा, अभी आया नहीं है, आएगा, आएगा तभी तो असेट्स है। तो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म असेट्स। ये बिजनेस में दूसरे लोगों को लोन्स के तौर पर पैसा हमने दे रखा है। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। वन मोर, हम अपने फ्रेंड्स, अपनी बिजनेस कम्युनिटी, अपने मेंबर्स के पास बैठे हैं, हमने कहा यार एक बात बता, ये दुकानदारी करते करते आधी जिंदगी निकल गई, सारे बाल सफ़ेद हो गए खोपड़ी पे, और फिर भी ये चप्पलें घिस रहे हैं बैठ करके, मज़ेदारी सी नहीं आ रही। कुछ ऐसा बिजनेस बता जिसमें कि घर बैठे बैठे पैसे आते रहें। तो उसने कहा साहब आसान, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, फाइनेंस पढ़े हुए हैं, तो आपको इतनी समझ नहीं आ रही, कब तक मेहनत करते रहोगे? आप आपके काम के लिए, पैसा कमाने के लिए अपने पैसे को काम पे लगाओ, खुद वॉच करो, सुपरवाइज करो, अकलमंदी से काम करो, फाइनेंस पढ़ो नितिन जैन सर से, बिल्कुल समझ में आएगी बात। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी फिजिकल लेबर करने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा आपके लिए पैसा कमा करके, अर्न करके आपको रिटर्न बैक प्रॉफिट कमा करके देगा। तो अब ये कैसे कमाई होगी इसको समझना है। तो हमने कहा भाई कोई कॉन्क्रीट प्लान बता, कोई ठोस प्लान बता जिससे कि हम ऐसा कर सकें। तो हमने कहा एक छोटे लेवल की बात समझो, आगरा के अंदर हिंदुस्तान लीवर कंपनी की एजेंसी ले लो। हिंदुस्तान कंपनी का बहुत प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकता है, और इसकी एजेंसी आप ले लोगे तो आपके पास कार्टन बंद, डिब्बा बंद, कंप्यूटर से बिल बनकर सामान आएगा। दुकान पे मैनेजर रखो, और वो मैनेजर पूरे आगरा में छोटे छोटे रिटेल आउटलेट्स पर सामान को बिकवाएगा। बिल्कुल हाथों हाथ सामान बिकता है, और हिंदुस्तान का पेमेंट एंड टू एंड, लगभग एंड टू एंड, विद इन 3 डेज और 4 डेज हाथ में पैसे आ जाते हैं। कोई बैड डेट्स कुछ नहीं होती है, तुरंत की तुरंत ऑर्डर, उधर की तरफ पेमेंट, संग की संग काम पक्का। और बिक्री पर आपका कमीशन बिल्कुल पक्का है। कंपनी आपको इंसेंटिव्स देगी, टारगेट कमीशन देगी, आपको घूमने के लिए तमाम फॉरेन कंट्रीज के टारगेट्स के अकॉर्डिंग विजिट्स मिलती हैं, और तमाम मोटा कमीशन आपको अमाउंट में मिलेगा। तो आपको खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करो और दूसरे लोगों पे काम हैंड ओवर करो, वॉच करो कि काम किस तरीके से करना है। और तुम खुद ही गधे बनकर काम करने लग गए तो वॉच नहीं कर पाओगे, और वॉच नहीं कर पाओगे तो बिजनेस में प्रोग्रेस भी नहीं कर पाओगे। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन। खुद नहीं करना है, दूसरे लोगों से काम करवाना है, यही तो मैनेजमेंट है, विद इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो यही बिजनेस ट्रिक्स हैं, पॉलिसीज हैं। छोटा कैपिटल है, छोटी बिजनेस प्रैक्टिस, बड़ा कैपिटल लगेगा तो बड़ी बिजनेस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हम वर्किंग के अकॉर्डिंग चलें। तो स्टूडेंट्स, हमने ये प्लान कर लिया कि हम अपने बिजनेस के अंदर में इस प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे। तो यहां पर हमारे लोगों ने हिंदुस्तान कंपनी से बात किया, हिंदुस्तान लीवर कंपनी से बात किया, यूनिलीवर कंपनी से बात किया कि हमको आगरा शहर के लिए आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए। तो हिंदुस्तान लीवर क्या कह रही है, आप जैसे आगरा शहर में से 25 लोग रोजाना आते हैं और आप 26वें आए हो आज, तो पूरे आगरा शहर में उन पहले वाले 25 को छोड़ करके हम आपको एजेंसी क्यों दे दें? और 4 लाख रुपए महीने की फ्री की बैठे की इनकम आपकी हो रही है, तो तुमको क्यों दे दें भाई? तुम में ऐसी कौन सी खूबसूरती है तो तुम्हें पैसे दे दें?
क्या करोगे कंपनी के लिए बताओ? कुछ ढंग का करो तो हम तुम्हें कंपनी की ऑफर दें, और नहीं तो हमारे पास 25 की लिस्ट पहले से ही रखी है, जो आ जाए। हमने कहा पता भाई तू क्या चाहता है, कैसे करके एजेंसी देगा? उसने कहा था लास्ट जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास आया है वो पैसे के अंगेंस्ट, कंपनी का नाम काम लेने के अंगेंस्ट 4 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए रेडी है। अगर तुम 5 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट करने को रेडी हो तो हम आपको बिजनेस दे देंगे, और जिस दिन तुम अपना काम छोड़ोगे या कंपनी तुमको काम से हटा देगी, ठीक उसी दिन आपकी सिक्योरिटी अमाउंट विद इंटरेस्ट आपको वापस मिल जाएगा। बिल्कुल वापस मिलता है, विद इंटरेस्ट मिलता है और सिक्योरिटी अमाउंट मिलता है। और जब तक आप पैसा रखेंगे बिजनेस में आपका पैसा चलेगा, ये कंपनी का रूल है, प्रोटोकॉल है, इसमें कोई बेईमानी नहीं है। हमने कहा डन, 5 करोड़ हम देंगे। तो हमने अपने 5 करोड़ रुपए एडवांस के तौर पर हिंदुस्तान लीवर कंपनी को दिए हुए हैं, ताकि हमारा पैसा यहां पर बिजनेस करने के लिए हम पर आ जाए। तो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म। अब बिजनेस की गारंटी चलिए 2 साल, 5 साल, 10 साल, 25 साल, तो पैसा हमारा डिपॉजिट रहेगा और उस पर इंटरेस्ट भी एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो ये पैसा क्या हुआ? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। बिजनेस ने दूसरे लोगों को अपना पैसा एडवांस के तौर पे दे रखा है। बड़े बिजनेस, डनलप टायर, एमआरएफ टायर्स, एसीसी सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप एजेंसीज, हीरो होंडा मोटरसाइकिल्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारी कंपनियां जो बिजनेस करती हैं पहले एडवांस धरवा लेती हैं, तब सामान उतरवाने की बात करती हैं दुकानों पर, क्योंकि इनके पास इस तरह के लोग बहुत पहुंचते हैं। लेकिन बिजनेस बड़ा होता है, इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है, तो बेनिफिट भी बड़ा होता है। फिलहाल एग्जाम्पल मैंने किया। अदर नॉन करेंट असेट्स, अदर नॉन करेंट असेट्स, नॉन करेंट मींस लॉन्ग टर्म, नॉन करेंट लॉन्ग टर्म, तो अदर नॉन करेंट असेट्स। सो योर बिजनेस हैज इन्वेस्टेड फंड्स, जो पैसे ऊपर में से कहीं पर भी नहीं आ पाते और लंबे समय के होते हैं, एक तरीके से याद रखते हैं। तो ये नॉन करेंट असेट्स का टर्म यहां पर हो गया। इन दिस वे स्टूडेंट्स यू केम इन नोटिस दैट हाउ वी कैन इन्वेस्ट एंड हाउ वी कैन पार्क आवर फंड्स, एंड दिस इज नॉन करेंट असेट्स। नाउ इट्स वेरी सिंपल टू कंटिन्यू। दिस इज करेंट असेट्स नाउ। सो व्हाट काइंड ऑफ असेट्स में बी कंसीडर्ड एज करेंट असेट्स? शॉर्ट टर्म, ऐसा पैसा जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ जाएगा, और ऑपरेटिंग साइकिल की डिटेल नहीं है तो 1 साल के अंदर वो पैसा आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे करेंट असेट्स। सिंपल, वेरी सिंपल। करेंट इन्वेस्टमेंट, आपने अपने थोड़े से पैसे किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए और दूसरा बिजनेसमैन कह रहा है कि मैं आपको पैसे 4 महीने बाद दे दूंगा, तो ठीक है, करेंट इन्वेस्टमेंट, पैसे आ जाएंगे। तो ये बात हो गई करेंट इन्वेस्टमेंट। यहां मुझे स्टूडेंट एक बात और बतानी है, प्लीज फोकस। सपोज यहां देखेंगे, मान लीजिए कि यहां बिजनेस के अंदर में हमारे पास में एक जो कंपनी थी, हमने अपने पैसे बिजनेस में यहां इन्वेस्ट किए और सपोज 4 साल के लिए इन्वेस्ट किए। अब यहां तो हो गया पहला साल, तो यहां जब पहला साल चल रहा था और हम बैलेंस शीट बना रहे थे, तो इस पैसे का पेमेंट तो अभी 3 साल बाद मिलना है, तो इस समय पर यह पैसा हमारे यहां नॉन करेंट असेट्स की लिस्ट में गिना जाएगा। अब आया दूसरा साल, तो यहां पर हमारी कंपनी की बैलेंस शीट बन रही थी, तो इस केस में भी ये पैसा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में गिना जाएगा। अब आया तीसरा साल, तो यहां पर भी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लेकिन जब 4th ईयर आएगा तो हमारी कंपनी की बैलेंस शीट यहां बननी है, और इस केस में हमको हमारे पैसे अगले 2-3 महीने बाद मिल जाने वाले हैं। तो ये जो असेट्स थी जो पिछले 3 साल से नॉन करेंट असेट्स की कैटेगरी में काउंट हो रही थी, वो इस 4 ईयर के एग्रीमेंट में, चूंकि पैसे इस साल 8 में आ जाने वाले हैं, इसलिए ये पैसे इस बार चले जाएंगे करेंट इन्वेस्टमेंट में। तो करेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब 2 तरीके की अमाउंट हुई। एक तो वो अमाउंट जो बेसिकली दी ही 1 साल से कम समय के लिए गई थी, तो वो करेंट इन्वेस्टमेंट है, अब इस साल वापस आ जानी है। और तरीका नंबर 2 कि कोई एसेट्स 5 साल के लिए दी गई थी, तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, ये 5वां साल आया तो मालूम पड़ा कंपनी की बैलेंस शीट बनने से गैप रह गया 4 महीने का, तो अब तो 1 साल के अंदर पैसा आ जाएगा। तो जो चीज पिछले 4 साल से या 3 साल से नॉन करेंट असेट्स थी, वो चीज करंट ईयर की कैटेगरी में कन्वर्ट हो गई। कौन सी कैटेगरी में? करंट इन्वेस्टमेंट में। इन्वेंट्रीज, स्टॉक, रॉ मटेरियल, WIP, लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, these are called inventories. Stock, loose tools, WIP, finished goods, semi finished goods, inventories. Trade receivables, very easy. Trade receivable देखो 2 नामों से पहचानते हैं हम लोग, इसका नाम ट्रेड रिसीवेबल एंड 2 पार्ट्स हैं,
One is called debtor and second is called BR, bill receivable. नॉर्मली हिंदुस्तानी पब्लिक स्टूडेंट्स जिन चीज़ों को डेटर्स और बीआर के नाम से पढ़ती है, इन दोनों का जॉइंट नाम कंपनी बैलेंस शीट के अंदर में कहा जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। जैसे ये वाले पैसे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस थे, ऐसे ये पैसे शॉर्ट टर्म के लिए हैं। एग्रीमेंट है कि भाई तुमको पैसे 3 महीने के लिए दे रहे हैं या 1 साल से कम समय के लिए दे रहे हैं, तो ये शॉर्ट टर्म का पैसा हो गया। अदर करेंट असेट्स, ऐसा कोई सामान जो 1 साल से कम समय का है, ऊपर के चारों आइटमों में आ नहीं पा रहा, तो अल्टीमेटली कहां जाएगा? नॉन करेंट असेट्स। So students, in this way you came in notice that how the company assets are react and what should be the working procedure, how the company balance sheet prepares. So this is a vertical balance sheet format and I explain each and everything in this concept. Students, it's a very important term to consider, to listen and to share, because according to your syllabus, the financial statement part C, third book. So this is the most important part to complete, because without this clarity you would not be able to learn the next 4 or 5 chapters. So for the purpose of explanation, for the purpose of clarity, for the purpose of further explanation, it is utmost required that you need to complete and to learn this chapter again and again and clearly. So thanks students for watching this video. Important thing is this, as I previously explained and say and just request again, that I am continuously getting feedback from majority of the students from different part of India, and they all are appraising this work and they are explaining that examples are good, and several times they are suggesting on their own views. So it's very good, your suggestions are always invited. Please consider one important message, that majority of the students are not in the financial eligibility to purchase the books. They are suffering. Those students having high lifestyles or higher income groups, they have the number of books, they have number of options, they have libraries, they have friends, but some of the part of the students are suffering with non-availability of studying material. Please share this video and subscribe this video, transfer this video, forward this video and share. By your sharing, only by your sharing, it would automatically be approached to the someone else, the person who is originally in need of this content. So please, it's my humble request to the commerce students that transfer this video and subscribe and motivate us. Thanks students.